Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, as you know, we were discussing enzymes yesterday. Enzymes. So far, we discussed two important aspects of this concept. Number one was about the enzymes as catalysts. Enzymes as catalysts. In this aspect, we have discussed that enzymes are biological catalysts. They are biological catalysts because they catalyze the reactions taking place in the bodies of living organisms. And in this regard, I have told you that every biological reaction is carried in presence of a biological catalyst, which we generally call by the name enzyme. Every biological reaction has its own enzyme, and we have seen by quoting certain examples that there are different types of enzymes which help to carry the reactions in the human body. And among those enzymes, invertase, diastase, maltase, urease, and so many other enzymes, pepsin, renin, they are all important enzymes which help the chemical reactions taking place inside the body. So one aspect was about these enzymes, what they are. They are biological catalysts. And the second most important aspect of these enzymes was their characteristics. Characteristics of enzymes. And in the characteristics of enzymes, we have discussed so many things. Number one was that these catalysts, they were highly active in nature. That means their rate of activity is very high. They increase the rate of biological reaction almost by a factor of 10 raised to power 22. And it is another important character was its specificity. Specificity means that for every biological reaction, there is only a particular enzyme. One enzyme cannot catalyze more than one reaction. As we have quoted so many examples yesterday, urease hydrolyzes urease hydrolyzes urea into ammonia and carbon dioxide, while as there is another substrate, another reaction, which involves hydrolysis of nitrogen methyl urea, nitrogen methyl urea. But that nitrogen methyl urea, although it has structure similar to that of urea, but urease enzyme is unable to hydrolyze it. So for every biological reaction, there is a particular enzyme which catalyzes only that very reaction. So these enzymes are specific in nature, and their another character was that they act at normal body temperature. Their activity is highest at normal body temperature. Their activities increase or decrease, rather decrease when their when the body temperature goes high or it goes low. The enzymal activity is reduced. The highest optimum activity of enzymes is at body temperature and at body pH. So there were some other characteristics also which we have discussed yesterday. Today we have to discuss how these enzymes catalyze a reaction, how they convert a reactant into product. That is mechanism of enzymatic catalysis. Our today's topic is mechanism of enzymatic catalysis.
That means how these enzymes help a reactant to get converted into product, how they help to convert reactant into product, and why they change only a particular reactant into a particular product. Since these enzymes, their mechanism of enzymatic catalysis is explained on the basis of theory. That theory is called as lock and key theory. Lock and key theory. Simple theory है ये. Lock and key theory is used to explain the mechanism of enzymatic action. लॉक एंड की थ्योरी का मतलब है, जैसे कि नाम हमें सजेस्ट कर रहा है, लॉक एंड की. आप जानते हैं कि एक लॉक को खोलने के लिए एक पर्टिकुलर की जरूरत पड़ती है. अगर कोई बंद लॉक हमें खोलना हो तो उसको खोलने के लिए अपनी एक खास चाबी की जरूरत पड़ती है. किसी दूसरे ताले की चाबी से हम इसको खोल नहीं सकते हैं. बस इसी तरह से आप एंजाइम की बात लीजिए. एंजाइम जो होता है, इट इज अ सॉर्ट ऑफ की. एंजाइम इज अ की. और जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट इज अ लॉक. तो इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में तब्दील करने के लिए एक पर्टिकुलर की जरूरत है, एक पर्टिकुलर एंजाइम की जरूरत है. तो इसलिए हम इसको लॉक एंड की थ्योरी कहते हैं. आगे जाके ये और ज्यादा अच्छी तरह से आप अंडरस्टैंड करेंगे इंशाल्लाह. तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप जानते हैं वो ये कि एंजाइम्स जो होते हैं, जैसे मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूं, एंजाइम्स जो हैं दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर. ये पॉइंट नोट करके रखिए अपनी जगह. एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर. स्पेसिफिक इन नेचर का मतलब यही हुआ कि एक पर्टिकुलर एंजाइम जो है, a particular enzyme catalyzes a particular reaction, a particular biological reaction. या पहले से जानते हैं, जो एंजाइम एक रिएक्शन में इस्तेमाल होता है वही एंजाइम दूसरी रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं होगा. तो इसी चीज को हम स्पेसिफिसिटी कहते हैं. तो एंजाइम्स हैं स्पेसिफिक इन नेचर. तो ऐसा क्यों है? व्हाई दीज एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर? तो इसके लिए एक और बात जहन में रखिए. ये जो एंजाइम्स हैं, जैसे मैंने बता दिया, ये बायोलॉजिकल कैटालिसिस है. ये जो एंजाइम्स हैं, इन एंजाइम्स पे कुछ साइट्स हैं. देयर आर सर्टेन साइट्स, rather we may use a term active site. Active sites are present on these enzymes. इन एंजाइम्स में कुछ एक्टिव साइट्स होती हैं, और वो जो एक्टिव साइट्स होती हैं प्रेजेंट ऑन द एंजाइम, वहां पर कुछ पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद होते हैं. मिसाल के तौर पर किसी एंजाइम में एक्टिव साइट पे NH2 ग्रुप हो सकता है, किसी पे OH ग्रुप हो सकता है, किसी पे COOH ग्रुप हो सकता है, कहीं पे SH ग्रुप हो सकता है, एटसेट्रा. इन्हें बहुत सारे, ये जो एक्टिव साइट मैं टर्म इस्तेमाल कर रहा हूं कि एंजाइम पे एक एक्टिव साइट होती है, वो एक्टिव साइट एक्चुअली क्या होती है? दैट इज अ पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप. किसी एंजाइम पे NH2 है, किसी पे OH है, किसी पे कार्बोक्सिल ग्रुप है, किसी पे थायल ग्रुप है, SH ग्रुप है. तो ये जो पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, दे आर एबल टू बाइंड with a particular reactant. These functional groups are able to get binded, they get binded with a particular reactant, जिसको हम यहां पर अक्सर टर्म इस्तेमाल करते हैं सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट यानी ये जो एंजाइम है, जैसे मैंने बता दिया कि एंजाइम पे एक्टिव साइट होती है. ये एक्टिव साइट एक्चुअली है क्या? These are actually the different functional groups present on the enzyme,
and because of these functional groups, these enzymes get binded to a particular reactant, and those reactants are called as substrates. तो फिर ये substrate जो है, it gets attached to these functional groups because of certain forces which get developed between the functional groups and the substrate, rather between the active site and the substrate. Those forces can be hydrogen bonding, they can be van der Waals forces, or there may be some other types of forces. You know, there are different types of force of attraction between the molecules: dipole-dipole moment, dipole-inducer dipole moment. So there are so many forces of attraction between the molecules, and among those molecular forces are hydrogen bonds and van der Waals forces. So the substrate gets attached to the active site of the enzyme. तो इस तरह से हम ये बता सकते हैं, जो ये एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम है, बिकॉज ऑफ दीज फंक्शनल ग्रुप्स दे एक्वायर ए पर्टिकुलर शेप. एंजाइम पे एक पर्टिकुलर शेप बनती है, अ पर्टिकुलर शेप एंजाइम अख्तियार करता है बिकॉज ऑफ दीज फंक्शनल ग्रुप्स, तो इन्हीं पर्टिकुलर शेप्स को हम एक्टिव साइट कहते हैं. तो इस एक्टिव साइट पे क्या होता है, इस एक्टिव साइट पे एक पर्टिकुलर शेप का सबस्ट्रेट ही फिट होता है. जिस तरह से एक पर्टिकुलर लॉक में एक पर्टिकुलर की फिट हो जाती है, इसी तरह से एक पर्टिकुलर शेप की एक्टिव साइट पे एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ही फिट हो जाता है. ठीक है ना. तो इसीलिए यही वजह है कि हम इस मैकेनिज्म को लॉक एंड की थ्योरी का नाम देते हैं. लॉक एंड की थ्योरी, जिस तरह से एक पर्टिकुलर लॉक में एक पर्टिकुलर की एडजस्ट होती है, इसी तरह से एंजाइम पे जो एक्टिव साइट होती है, इस एक्टिव साइट की एक पर्टिकुलर शेप होती है बिकॉज ऑफ फंक्शनल ग्रुप. पर्टिकुलर शेप होती है, उस पर्टिकुलर शेप में एक पर्टिकुलर शेप का सबस्ट्रेट ही फिट हो सकता है. ठीक है ना. तो आपने सुन लिया मैंने क्या कहा कि एंजाइम जो है इसकी एक पर्टिकुलर शेप है, इस पर्टिकुलर शेप में एक पर्टिकुलर शेप का सबस्ट्रेट ही फिट होता है, जिस तरह से एक पर्टिकुलर लॉक में एक पर्टिकुलर की एडजस्ट होती है. तो फिर क्या होता है, फिर ये एंजाइम और सबस्ट्रेट, जब सबस्ट्रेट फिट हो गया इन द एंजाइम, तो ये एक कंप्लेक्स बनाते हैं. उस कंप्लेक्स को हम एंजाइम सबस्ट्रेट कंप्लेक्स कहते हैं. उसको हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कंप्लेक्स. तो जब एंजाइम सबस्ट्रेट कंप्लेक्स अच्छी तरह से फिट हो गया, हम एंजाइम को अगर ई से रिप्रेजेंट करेंगे, सबस्ट्रेट को एस से रिप्रेजेंट करेंगे, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कंप्लेक्स जो है इसको हम ई एस से रिप्रेजेंट करेंगे. तो ई एस बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कंप्लेक्स. तो फिर क्या होता है, जब ये एंजाइम सबस्ट्रेट कंप्लेक्स बन गया, जब सबस्ट्रेट अच्छी तरह से फिट हो गया इन द एंजाइम, तो फिर इसमें रिएक्शन हो जाती है. एंजाइम सबस्ट्रेट कंप्लेक्स जो होता है, ये एंजाइम प्रोडक्ट कंप्लेक्स में चेंज होता है. यानी सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ मिलके अब इसमें रिएक्शन हो जाती है, तो रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट जो है ये अब प्रोडक्ट में तब्दील होता है, एंजाइम प्रोडक्ट बनता है, एंजाइम प्रोडक्ट कंप्लेक्स. मगर चूंकि प्रोडक्ट जो होता है इट इज नॉट एडजस्टेबल विद द एंजाइम, ये एंजाइम के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये एंजाइम अलग होता है और प्रोडक्ट जो है ये इस एंजाइम से बाहर आ जाता है. प्रोडक्ट अलग हो जाता है, हमें एंजाइम जो है इस दौरान रिजेनरेट हो जाता है. अब ये एंजाइम फिर से सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करके फिर से एंजाइम सबस्ट्रेट कंप्लेक्स बनाएगा. इस तरह से ये एंजाइम रिएक्शन में बार बार इस्तेमाल होता है. यही वजह है कि हमें एंजाइम की बहुत कम तादाद इस्तेमाल करनी पड़ती है, जो एक कैरेक्टर है इस एंजाइम का. ठीक है ना, आप समझ गए ना मेरी बात. अब हम यही बात जो हमने बता दी कि किस तरह से एंजाइम एक
सबस्ट्रेट को, एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट्स में तब्दील करता है, इसी चीज को हम डायग्रामेटिकली थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें सबसे दो बातें याद रखनी है। पहली बात ये कि एंजाइम जो है इस पे एक पर्टिकुलर शेप की एक केविटी लाइक होती है, जो कि फंक्शनल ग्रुप की वजह से वजूद में आ जाती है। तो उस केविटी को हम एक्टिव साइट कहते हैं। तो उस एक्टिव साइट में सिर्फ एक पर्टिकुलर शेप वाला सबस्ट्रेट ही फिट होता है। तो ये मान लो सपोज हमारे पास एक एंजाइम है, उस एंजाइम की शेप जो है मान लो वो इस तरह की है। मान लो ये शेप है हमारे पास एंजाइम की, दिस इज द एंजाइम। अब इस एंजाइम में आप देख रहे हैं ये जो पिटस और इसमें ये रेजिंग्स हैं, तो ये इस एंजाइम को एक पर्टिकुलर शेप दे रहा है। अब जो सबस्ट्रेट है इस एंजाइम में वही सबस्ट्रेट फिट होगा जो एक इसी की जैसी शक्ल का मिलता जुलता होगा। मैं यहां पर बनाता हूं इस तरह से, आप देख लीजिए कि किस तरह का सबस्ट्रेट जो है वो फिट हो सकता है। दिस इज द सबस्ट्रेट, ये एंजाइम की शेप है और ये सबस्ट्रेट की शेप है। इस वक्त ये दोनों अलग अलग हैं। और जब रिएक्शन होती है, मैंने कहा कि ये सबस्ट्रेट जो है ये इस एंजाइम में फिट होता है। आप देख लीजिए ये बल्जिंग जो है ये इस डिप्रेशन में फिट होगी और इसकी बल्जिंग जो है वो इसकी डिप्रेशन में फिट होगी। फिर इसी तरह से इस डिप्रेशन में ये बल्जिंग आ जाएगी, इस तरह से ये वाली जो है इसमें फिट आएगी, ये वाली जो है इसमें फिट आएगी, ये वाली जो है इसमें फिट आएगी। तो इस तरह से मैं बनाऊंगा, ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है, देखिए ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है। अब एंजाइम और सबस्ट्रेट को क्या करना है, एक दूसरे में फिट होना है। तो पहले मैं एंजाइम की शेप बनाता हूं फिर से। ये एंजाइम है, ये एंजाइम है। अब देखिए जब सबस्ट्रेट इसमें फिट होता है तो क्या होता है, सबस्ट्रेट इस तरह से इसमें फिट होगा। ये देख लीजिए ये एंजाइम था हमारा, ये सबस्ट्रेट था। अब एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है एक दूसरे में फिट हो गए। ये इस वजह से फिट हो गए जबकि इनकी शेप इस तरह से बनाई गई थी कि इसके पिट्स में सबस्ट्रेट जो है अच्छी तरह से फिट होता है, तब कहीं जाके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। अगर इसकी शेप इसके पिट्स में अच्छी तरह से फिट ना हो जाती तो फिर ये कॉम्प्लेक्स बनना बड़ा मुश्किल था। तो इस तरह से ये बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, यानी सबस्ट्रेट अच्छी तरह से एंजाइम में फिट हो गया, अब इस सबस्ट्रेट में एंजाइम की मदद से चेंज हो जाती है, ये सबस्ट्रेट चेंज होता है इनटू प्रोडक्ट्स। तो ये मैं इस तरह से आपको बता दूंगा, समझा दूंगा। अब देख लीजिए फिर से मैं बना रहा हूं। ये एंजाइम है, ये इसमें सबस्ट्रेट आया है, सॉरी। अब एक्चुअली क्या होगा, मान लो यहां पर ये जो एंजाइम है सबस्ट्रेट है, अब एंजाइम की मदद से इस सबस्ट्रेट में चेंज हो जाती है, यानी ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट्स में चेंज होता है। ये एंजाइम था, अब ये जो है ये सबस्ट्रेट ब्रेक होके दो प्रोडक्ट्स में तब्दील होता है। एक पार्ट अलग हो जाता है इस तरह से, दूसरा पार्ट ऊपर अलग हो जाता है। तो अब जब ये अलग हुआ, चेंज इसमें हो गई, अब ये इसमें अच्छी तरह से नहीं रह पाएगा। इसलिए जो प्रोडक्ट है एंजाइम जो है
एंजाइम फिर से अलग होगा, इट विल गेट लिबरेटेड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, ये फिर से एंजाइम हमें रिजनरेट हो गया और प्रोडक्ट अलग से बन गया। मान लो एक प्रोडक्ट ये बन गया, दूसरा जो है ये बन गया, दो प्रोडक्ट्स हमें हासिल होते हैं। ये प्रोडक्ट है, तो ये प्रोडक्ट जो बन गए ये एंजाइम में अब फिट होने वाले नहीं थे, इसलिए ये अलग हो गए, हमें प्रोडक्ट अलग से मिल गया और एंजाइम फिर से रिजनरेट हो गया। अब ये एंजाइम फिर से यहां पर रिएक्शन कर सकता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर एंजाइम जो है वो किस तरह से एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को ही चेंज कर सकता है इनटू प्रोडक्ट्स, क्योंकि एक एंजाइम तब सबस्ट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा जब सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट में अच्छी तरह से फिट होगा, जिस तरह से कि एक लॉक में अच्छी तरह से फिट होती है, जबकि फिट होती है तब कहीं जाके वो लॉक को खोल सकता है। इसी तरह से एंजाइम तब सबस्ट्रेट को चेंज करेगा इनटू प्रोडक्ट्स जब सबस्ट्रेट एंजाइम में फिट होके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फिर बाद में ये एंजाइम प्रोडक्ट में तब्दील होगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में, और फिर प्रोडक्ट रिलीज होके एंजाइम को फिर से रिजनरेट करेगा, जो एंजाइम फिर से रिएक्शन करेगा। ठीक है ना? तो इस तरह से आप समझ गए ये जो एंजाइम है, हाउ इट हेल्प्स सबस्ट्रेट रिएक्टेंट टू गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। और ये बात भी इसमें इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ एक एंजाइम एक पर्टिकुलर रिएक्शन को ही क्यों कैटलाइज करता है, व्हाई अ कैटलिस्ट इज नॉट यूज्ड इन मोर देन टू डिफरेंट रिएक्शंस और इन मोर देन वन रिएक्शन। तो इसके पीछे यही राज है कि एंजाइम पे एक एक्टिव साइट होती है, वो एक्टिव साइट एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को ही अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर सकती है या एडजस्ट कर सकती है, हर एक को एडजस्ट नहीं कर पाती। ठीक है ना? तो दिस वाज मैकेनिज्म ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस, और इसी के साथ हमारा ये एंजाइम्स वाला टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास एक छोटा सा एक और पॉइंट है, कैटलिस्ट्स यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। तो ये पॉइंट जो है इसमें कुछ एग्जांपल्स मुझे देनी है, क्योंकि इसकी अपनी अलग इंपॉर्टेंस है हमारी जिंदगी में। कैटलिस्ट्स यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। मेरा इसमें लास्ट पॉइंट जो है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, कैटलिस्ट्स यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। कैटलिस्ट्स यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। सबसे अहम पॉइंट ये है कि हम इंडस्ट्रीज का इस्तेमाल क्यों करते हैं, पहले हमारे जहन में ये बात होनी चाहिए। तो जहां तक कैटलिस्ट्स का ताल्लुक है इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल करने का, तो इंडस्ट्रीज जो है, इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस जो है वो ये है कि हम इंडस्ट्रीज में डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑन लार्ज स्केल प्रोड्यूस करते हैं। जब हमें कोई चीज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल करनी पड़ती हो तो फिर हम उसको लेबोरेटरी में नहीं बनाते हैं, बल्कि इंडस्ट्री में, फैक्ट्रियों में बनाते हैं, इंडस्ट्रीज में बनाते हैं। तो इंडस्ट्रीज में इसलिए हमें क्या करना है, ज्यादा क्वांटिटी में मटेरियल को बनाना है, और फिर इस इंडस्ट्री में भी मटेरियल बनने की रफ्तार जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। आपके लिए एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं। हम सभी लोग यूरिया इस्तेमाल करते हैं, यूरिया जो हम एज ए फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं, यूरिया खाद हम इस्तेमाल करते हैं, यूरिया एज ए फर्टिलाइजर। तो आप देख रहे हैं कि टनों के हिसाब से यूरिया खाद जिम्मेदार लोग इस्तेमाल करते हैं। अब आप खुद सोच लीजिए कि इतनी ज्यादा क्वांटिटी में जो खाद बनाई जाती है ये किसी लेबोरेटरी में नहीं बनती है, बल्कि ये खाद कारखानों में तैयार की जाती है। तो जिस वक्त ये खाद कारखानों में तैयार की जाती है, जाहिर सी बात है ज्यादा क्वांटिटी में बननी चाहिए।
तो ये खाद बनाने के लिए हम एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका नाम है अमोनिया। अमोनिया जो है, इसकी फार्मूला NH3 है। अमोनिया जो है, इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर यूरिया ऑन लार्ज स्केल। तो चूंकि अमोनिया जो है ये हमारे इर्द गिर्द, हमारे नेचर में, हमारी सराउंडिंग में, अर्थ क्रस्ट में कहीं एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, इसलिए यूरिया बनाने के लिए पहले हमें अमोनिया मैन्युफैक्चर करना पड़ता है। तो क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी में अमोनिया की जरूरत है, तो इसलिए अमोनिया मैन्युफैक्चर करने के लिए इंडस्ट्री में हम एक खास प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं जिससे हम हैबर्स प्रोसेस कहते हैं। हैबर्स प्रोसेस, आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूं? यानी मेरे कहने का मतलब है कि इंडस्ट्रीज जो हैं इनमें हम वो प्रोडक्ट तैयार करते हैं जो हम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अपनी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, जिसकी एक एग्जांपल यूरिया है। इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड है, इसी तरह से क्लोरीन गैस है, इसी तरह से हाइड्रोजन गैस है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हम डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल करते हैं। तो मैं अमोनिया की बात कर रहा था कि यूरिया बनाने के लिए हमें अमोनिया की जरूरत है, और अमोनिया जो है इट इज फॉर्म्ड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज हैबर्स प्रोसेस। तो हैबर्स प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हम रिएक्शन कराते हैं बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। नाइट्रोजन तो नेचर में मौजूद है, एटमॉस्फेयर में मौजूद है, हम यही नाइट्रोजन इस्तेमाल करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। मगर हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर में बहुत कम क्वांटिटी में मौजूद है, ट्रेसेस में है, इसलिए हमें हाइड्रोजन भी प्रिपेयर करना पड़ता है इंडस्ट्रियली। तो खैर यहाँ अमोनिया की बात चल रही है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है ये एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके अमोनिया बनाते हैं, NH3। तो इसीलिए जो प्रोसेस इस्तेमाल होती है दैट्स कॉल्ड एज हैबर्स प्रोसेस। तो ये प्रोसेस जो है आप देख रहे हैं, जैसे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ये प्रोसेस जो है अगर आप रिएक्शन को बैलेंस करना चाहेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। ये प्रोसेस जो है ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। नाइट्रोजन प्लस 3 टाइम्स हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया, रिवर्सिबल प्रोसेस। एक तरफ से अमोनिया बनता है, दूसरी तरफ से ये फिर डिसोशिएट होके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में तब्दील हो रहा है। हमें अमोनिया की जरूरत है, तो अमोनिया बनने के साथ साथ ही वापस नाइट्रोजन हाइड्रोजन में तब्दील हो रहा है। इसलिए हमें क्या करना है, हमें बहुत सारी कंडीशंस यहाँ पर इस्तेमाल करनी पड़ती हैं जो हमें मदद करते हैं सिर्फ अमोनिया बनने में, जो अमोनिया को वापस ब्रेक नहीं कराती हैं। ऐसी कंडीशंस का हमें इस्तेमाल करना है। तो वो कंडीशंस जो हमें यहाँ पर इस्तेमाल करनी पड़ेगी, दोज कंडीशंस वी गेट फ्रॉम लिचट-क्लियर्स प्रिंसिपल। तो वो आपने 11th क्लास में डिस्कस किया है इन इक्विलिब्रियम, तो इसलिए वो यहाँ पर मैं फिर से उसको डिस्कस करने नहीं जा रहा हूं। तो लिचट-क्लियर्स प्रिंसिपल की मदद से हमें पता चलता है कि हमें कौन कौन सी कंडीशन इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो उस एतबार से बहुत हाई प्रेशर की जरूरत पड़ती है, 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर या 200 बार्स प्रेशर का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी तरह से बहुत हाई टेम्परेचर, ऑलमोस्ट 723 टू 773 केल्विन का टेम्परेचर इस्तेमाल करना पड़ता है। और इसके अलावा फिर भी हमें अमोनिया की तादाद बढ़ाने के लिए कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है, और वो कैटलिस्ट हम इस्तेमाल करते हैं फाइनली डिवाइडेड आयरन। आयरन हम इस्तेमाल करते हैं एज ए कैटलिस्ट, और इसके साथ हम मोलिब्डेनम एज प्रमोटर इस्तेमाल करते हैं। ये आप जानते हैं प्रमोटर क्या है। तो इस तरह से इंडस्ट्री में रेट ऑफ अमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, इसकी तादाद बढ़ाने के लिए हमें कैटलिस्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया में हमें आयरन और मोलिब्डेनम का इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर बाद में हम इसी अमोनिया को इस्तेमाल करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इससे बनाते हैं, यूरिया इससे बनाते हैं। तो नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए हम एक और प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, उससे हम कहते हैं ऑस्टल-वार्ड्स प्रोसेस। ऑस्टल-वार्ड्स प्रोसेस, ऑस्टल-वार्ड्स, WALDS, ऑस्टल-वार्ड, OSTWALDS, ऑस्टल-वार्ड्स प्रोसेस। ये ऑस्टल-वार्ड्स प्रोसेस जो है इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड इन इंडस्ट्रीज। इन गर्ज ये है
कि ये जो मैं कह रहा हूं कैटलिस्ट यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री में हम कैटलिस्ट सिर्फ इस गरज से इस्तेमाल करते हैं कि हमें इंडस्ट्रीज में लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ती है। तो चूंकि ये जो रिएक्टेंट होते हैं ये अक्सर रेट, जो कैटलिस्ट होते हैं ये अक्सर रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज करते हैं मैनी फोल्ड, मैनी टाइम्स, उनकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है। तो इसी वजह से हमें इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी मुख्तलिफ कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है मुख्तलिफ प्रोसेस में। जैसे हैबोरस प्रोसेस में आपने आयरन और मोलिब्डेनम का इस्तेमाल किया, इसी तरह से अगर नाइट्रिक एसिड आपको मैन्युफैक्चर करना हो तो इसके लिए देखिए प्रोसेस क्या होती है। इसके लिए सबसे पहले प्रोसेस ये है कि अमोनिया जो होता है NH3, इट इज मेड टू रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। अमोनिया इज मेड टू रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। तो यहां पर हम इस्तेमाल करते हैं कैटलिस्ट प्लेटिनम कोटेड और एस्बेस्टस, इसको हम प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस कहते हैं। प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस का इस्तेमाल होता है एज अ कैटलिस्ट। तो इस रिएक्शन में अमोनिया चेंज होता है नाइट्रिक एसिड और वाटर में, नाइट्रिक एसिड और वाटर। और उसके बाद दूसरे स्टेप में हम नाइट्रिक एसिड को रिएक्शन कराते हैं विथ ऑक्सीजन, तो ये चेंज होता है into nitrogen dioxide. Nitric oxide is made to react with oxygen and it gets converted into nitrogen dioxide. तो उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो बनता है it is made to react with water and oxygen to form nitric acid HNO3. तो इसके बाद नाइट्रिक एसिड हमें बनता है। तो इस तरह से हमारी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। इस प्रोसेस को हम ऑस्लोवार्ड्स प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है ये भी इस्तेमाल होता है इंडस्ट्री में खाद बनाने के लिए और ये लेबोरेटरी रिएजेंट भी है। तो इसलिए नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसको भी लार्ज स्केल में तैयार करना पड़ता है। तो इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए हमें कैटलिस्ट प्लेटिनम का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी तरह से एक और इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है जिससे हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। मुमकिन है आपने सुना होगा, बहुत बार मैंने भी अपनी क्लास में ये बात कही है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है दैट इज कॉल्ड एज किंग ऑफ द केमिकल्स। सल्फ्यूरिक एसिड जो है, मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये तीसरी एग्जांपल में कोट कर रहा हूं, मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, इसके लिए हम दो प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। एक हम कहते हैं लेड चैम्बर प्रोसेस, दूसरी प्रोसेस का नाम है कंटैक्ट प्रोसेस। मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कंटैक्ट प्रोसेस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट मेथड है सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर करने के लिए। मैं भी कह रहा था आपसे कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसको हम किंग ऑफ द केमिकल्स कहते हैं, किंग ऑफ द केमिकल्स। इसको किंग ऑफ द केमिकल्स क्यों कहा जाता है, इसके पीछे सिर्फ एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये तकरीबन हर एक इंडस्ट्री में यूज होता है, इन ईच एंड एवरी इंडस्ट्री। कोई भी इंडस्ट्री हो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। पेंट इंडस्ट्री हो, सीमेंट इंडस्ट्री हो, इस तरह फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हो, जो भी गिलास इंडस्ट्री हो, यानी कोई इंडस्ट्री ऐसी है ही नहीं जिस इंडस्ट्री में सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल ना होता हो। लेबोरेटरी में ये एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, ये लेड स्टोरेज बैटरीज में इस्तेमाल होता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है ये। तो इसीलिए हम इसको किंग ऑफ द केमिकल्स कहते हैं, हाईली रिएक्टिव एसिड है ये, किंग ऑफ द केमिकल्स। इसलिए चूंकि हर जगह इस्तेमाल होता है तो इसलिए इसकी जरूरत भी बहुत ज्यादा पड़ती है। इसलिए इसकी जरूरत को पूरा करने के लिए हमें इसको भी इंडस्ट्रियल स्केल में प्रिपेयर करना पड़ता है। तो जैसे मैंने बता दिया, एक इंडस्ट्रियल मेथड है इसका कंटैक्ट प्रोसेस। तो इस कंटैक्ट प्रोसेस में क्या किया जाता है, इस कंटैक्ट प्रोसेस में हम पहले सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड जो है it is obtained either by burning sulfur, S8 plus oxygen gives sulfur dioxide, या हम आयरन पायराइटस लेते हैं FeS, आयरन पायराइटस लेते हैं, उसको हम रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, वहां पर भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो फिर क्या करते हैं हम, सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो हमें हासिल होता है बाय बर्निंग सल्फर और आयरन पायराइटस, इसको हम रिएक्ट कराते हैं विथ ऑक्सीजन and it forms sulfur trioxide. ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल है. This reaction is also reversible in nature.
इसलिए यहाँ पर जो कंडीशंस इस्तेमाल होंगी दैट विल बी डिसाइडेड बाय लिचट-लियर्स प्रिंसिपल। और इसके अलावा रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए, हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और वो जो कैटलिस्ट हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज ईदर प्लेटिनम, एस्बेस्टस प्लेटिनम, या हम इस्तेमाल करते हैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 का इस्तेमाल करते हैं एज कैटलिस्ट, और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। बाद में यही सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है इट इज डिसॉल्व्ड इन सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म ए कंपाउंड दैट इज H2S2O7। इसे हम ओलियम कहते हैं। और फिर ये जो ओलियम है H2S2O7 it is dissolved in water and it forms two molecules of sulfuric acid। गर्ज ये है कि इस रिएक्शन के दौरान, इस प्रोसेस के दौरान जब हम सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चर करते हैं ऑन अ लार्ज स्केल बाय कंटैक्ट प्रोसेस, तो इस प्रोसेस में जो मेन रिएक्शन है प्रोडक्शन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, इट इज कैरीड इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट प्लेटिनम और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। और इस प्लेटिनम या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का जो रोल बनता है वो यही है कि ये रेट ऑफ द रिएक्शन ज्यादा क्वांटिटी में सल्फर ट्राइऑक्साइड को प्रिपेयर करता है। तो इसलिए इंडस्ट्रीज में भी इन कैटलिस्ट्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि इंडस्ट्री का मकसद ही यही है कि हम किसी सब्सटेंस को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में और हाई रेट पे मैन्युफैक्चर करें, तो कैटलिस्ट्स इसलिए इसमें बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं। इसी तरह से आप एक और एग्जांपल कोट कर सकते हैं जो आपने बहुत बार पढ़ी है। वो ये है दैट्स कन्वर्जन ऑफ ऑयल्स इनटू फैट्स, जिसको हम हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स भी कहते हैं। हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स। हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स में क्या किया जाता है, ऑयल्स को कन्वर्ट किया जाता है इनटू फैट्स। क्योंकि ऑयल जो होता है ये लिक्विड होता है, ऑयल इज ए लिक्विड। इस लिक्विड को हमें तब्दील करना है इनटू फैट। फैट जो है दैट इज अ सॉलिड, फैट सॉलिड है, ऑयल लिक्विड है। यह प्रोसेस कैसे की जाती है, हाउ एन ऑयल इज कन्वर्टेड इनटू फैट, दिस प्रोसेस कैरीड बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। यानी हमें ऑयल को हाइड्रोजनेशन करनी पड़ती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ऑयल्स। ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ऑयल्स इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट निकल, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल। तो इस तरह से ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो रही है। ऑयल कन्वर्ट हो रहा है इनटू फैट इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट निकल। या प्लेटिनम भी हम इस्तेमाल करते हैं, हम पैलेडियम भी यहां पर इस्तेमाल करते हैं। तो गर्ज ये है कि ये जो हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स है दिस इज अ प्रोसेस व्हिच इज कैरीड on large scale in industries, and in that in order to increase the formation of fat we have to increase the process of hardening of oil, and for that purpose we use nickel as catalyst. In the same way, for the manufacture of hydrogen, for the manufacture of chlorine, we also carry those processes in presence of catalysts. So this is some concept, some information regarding the use of catalysts in industries. I have quoted here 4 important examples: formation of ammonia by Haber's process, and the same way manufacture of nitric acid by Osterwald's process, manufacture of sulfuric acid by contact process, and then the hardening of oils. And then there are other processes like formation of hydrogen, production of hydrogen by Bosch process, and there is formation of chlorine by Dakins process. Those are also industrial processes, and in these industrial processes to increase the rate of the formation of products we use different catalysts. So with this the concept of this catalysis comes to an end, and here we have almost completed this unit which we call surface chemistry. Inshallah, from tomorrow we will move to next unit, and till then, thank you for attending. Hope you might have understood this lesson. कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कॉल मी, आई विल ट्राई टू मेक योर कंसेप्ट क्लियर इफ़ यू फील लाइक दैट। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल से हमारा नया यूनिट शुरू होगा। तो थैंक यू वेरी मच।